السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ مشاہدین کرام، فیس بک اور یوٹیوب پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، رابطے میں اور اس درس میں شامل تمام سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان کہ آج کا یہ نیا درس آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ رسولوں پر ایمان کے رکن پر ہماری گفتگو جاری تھی، اور اس کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے ختم نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، امت محمدیہ کی خصوصیات پر گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ آج کے درس میں نبی آخر الزماں خاتم النبیین والرسل فداہ ابی و امی صلوات ربی وسلامہ علیہ کی ایک اہم ترین خصوصیت پر گفتگو ہوگی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی اور رسول کو حاصل نہیں ہے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والا اسراء اور معراج کا قصہ۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اسراء اور معراج کہتے کسے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی دلیلیں کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ گفتگو رہے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تفصیل کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ بھی اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کروایا گیا اور پھر معراج کے مقام پر سرفراز فرمایا گیا۔ اسراء اور معراج کا واقعہ قرآن کریم کے اندر مذکور ہے، لیکن یہ اسراء اور معراج ہے کیا؟ آئیے سب سے پہلے اس کی حقیقت پر غور کرتے ہیں۔ اسراء اور معراج دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے اسراء کی حقیقت کو دیکھتے ہیں، پھر معراج کی حقیقت کو دیکھیں گے۔ اسراء عربی زبان میں سرے سے مشتق ہے، اور سرے کہا جاتا ہے سیر اللیل او عامت، رات بھر چلنا یا زیادہ حصہ رات کا چلتے رہنا، اور کہا گیا کہ رات بھر چلنے کو سیر کہا جاتا ہے، یعنی گویا تین معنی ذکر کیا گیا: رات کو چلنا، رات کے زیادہ حصے میں چلنا، یا رات بھر چلنا، اس کو عربی زبان میں سیر کہا جاتا ہے، اور اسی سیر سے اسراء مشتق ہے۔ جب اسراء شریعت میں بولا جاتا ہے تو اس سے مراد شرعی معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام مکہ مکرمہ سے ایلیا بیت المقدس تک اللہ رب العالمین کا لے جانا، اور پھر اسی رات میں وہاں سے لوٹا کر مکہ مکرمہ پہنچانا۔ اسراء کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے، یعنی شرعی اعتبار سے جب اسراء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جاتا ہے، یہ واقعہ خاص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، تو اسراء کا مطلب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
मस्जिद हराम जो मक्का मुकर्रमा में है वहाँ से रात को ले जाकर बैतुल मक़दिस पहुँचाना और बैतुल मक़दिस से फिर मक्का मुकर्रमा वापस लेकर के आना। यहाँ से इसरा का लफ्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया गया। इसरा ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की अजीम तरीन निशानियों में से है, जिस निशानी के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद फरमाई। हिजरत से पहले ये वाक़या पेश आया इस तौर पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले जाया गया, बुराक पर सवार करके जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मईयत में, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस पहुँच गए और वहाँ पहुँचकर जिब्रील अमीन ने बुराक को मस्जिद अक़सा के एक हल्के से बांध दिया, फिर मस्जिद में दाखिल हुए और वहाँ सारे के सारे अंबियाए किराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज बाजमात पढ़ाई इमाम बन करके। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आए, शराब का एक बर्तन लेकर और दूध का एक बर्तन लेकर, यानी दो बर्तन लेकर के आए, एक में शराब और एक में दूध। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब के प्याले के मुकाबले दूध के प्याले को आपने पसंद फरमाया। जिब्रील अमीन ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि हुदीत लिल फितरा, ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फितरत की रहनुमाई किए गए। इसरा के किस्से पर किताब और सुन्नत की दलीलें मौजूद हैं, यानी कुरान करीम के अंदर और अहादीस शरीफा सहीहा के अंदर इसकी वाज़ेह दलीलें मौजूद हैं। सूरह इसरा आयत नंबर 1 में, जिसे सूरह बनी इसराइल भी कहा जाता है, पहली आयत के अंदर इस सूरत में रब्बुल आलमीन फरमाता है कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जो रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गई। वो मस्जिद अक़सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें उतारी ताकि अपनी वाज़ेह निशानियों को मुशाहिदा को करवा सके। यकीनन वो सुनने और देखने वाला है। सुन्नत मुबारका में अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दाह से रिवायत है, वो रिवायत जिसे इमाम मुस्लिम ने अपने यहाँ तखरीज किया है। साबित अल-बुनानी के तरीक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उतीतु बिल बुराक, मेरे पास बुराक लाया गया। और बुराक ये सफ़ेद चौपाया है जो काफ़ी लंबा होता है, गधे से बड़े साइज़ का होता है और खच्चर से छोटा होता है। वो अपने कदम जहाँ निगाह ठहरती है, जहाँ तक निगाह जाती है, वहाँ तक उसका एक कदम होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस पर सवार हुआ यहाँ तक कि बैतुल मक़दिस आया।
फिर उसको एक हलके से बांध दिया जहां पर अंबिया अपनी सवारी बांधा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उसके बाद मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, वहाँ 2 रकातें अदा की, फिर मैं निकला। जिब्रील मेरे पास 2 बर्तन में, एक में शराब और एक में दूध लेकर आए और मैंने दूध को इख्तियार किया। तो जिब्रील अमीन ने कहा कि आप फितरत को आपने इख्तियार किया, आपने फितरत को इख्तियार किया। फिर उसके बाद इसरा के वाक़े के बाद फिर हदीस का बकिया हिस्सा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर ले जाया गया, उसकी तफसील बयान की गई है। इसरा के ताल्लुक़ से मुतअद्दिद हदीसें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं। उनमें से बाज़ वो हैं जो सहीहैन के अंदर आई हैं और उनमें से बाज़ वो हैं जो सुनन के अंदर आई हुई हैं और सुनन के अलावा हदीस की किताबों में। और इस किस्से को सहाबा किराम की एक जमात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है। एक बड़ी तादाद सहाबा किराम की, तकरीबन 30 सहाबा से इसरा का किस्सा मनक़ूल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने इस किस्से की तफसीलात को नक़ल किया है और उनसे, उन सहाबा किराम से बाद के अइम्मा ने और उलमाए किराम ने, जिनकी तादाद का कोई शुमार व क़तार नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस किस्से की तफसीलात को बयान फरमाया है। उलमाए उम्मत का जो मुतक़द्दिमीन हैं और मुताख़िरीन हैं, उन सब का इत्तिफ़ाक़ है, उनका इजमा मुनक़िद है इस बात पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा करवाया गया। इसरा का वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ है। इस पर इजमा नक़ल किया है क़ाज़ी इयाद ने अश-शिफ़ा के अंदर, सफ़ारीनी ने लवामे उल अनवार के अंदर और दूसरे मुसन्निफ़ीन ने अपनी अपनी किताबों में। और इस बात पर भी कि इसरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह और जिस्म दोनों के साथ करवाया गया था। ये वाक़या ख्वाब में नहीं पेश आया था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत बेदारी में पेश आया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहालत बेदारी बैतुल मक़दिस तक ले जाया गया था बुराक़ पर। जैसा कि आपने हदीस के अंदर सुना, बाकायदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक़ पर सवार होकर के जिब्रील अमीन की मइयत में गए और फिर किस्से की तफसीलात जो आगे बयान की गई हैं, ये सारी की सारी तफसीलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत बेदारी की हैं। इसी पर जो अहादीस शरीफा सहीहा की दिलालत है और कुरान की दिलालत है, वो यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत बेदारी ये इसरा करवाया गया। और इसी पर आम सहाबा और अहले सुन्नत वल जमात के मुहक्किकीन उलमा हैं। इमाम इब्न अबिल इज़्ज़ अल हनफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इसरा की हदीस और इसरा का वाक़या यूँ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके जिस्म समेत हालत बेदारी में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले जाया गया, सही कौल की बुनियाद पर। क़ाज़ी इयाद ने इस बात को मज़ीद तहक़ीक़ के साथ ज़िक्र करते हुए कहा कि आम अहले इल्म, सहाबा किराम और उनके बाद के और सलफ़ के आम उलमा और सारे मुसलमान इस बात की तरफ गए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसरा जिस्म और रूह के साथ था और हालत बेदारी में था, और यही मज़हब हक़ है और यही कौल सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में से इब्न अब्बास, जाबिर,
अनस, हुदैफा, उमर, अबू हुरैरा, मालिक इब्न सअसा और अबू हब्बा अल बदरी, इब्न मसऊद, दहाक, सईद इब्न जुबैर, क़तादा, इब्न मुसय्यब, इब्न शिहाब, इब्न ज़ैद, हसन, इब्राहीम, मसरूक, मुजाहिद, इकरमा, इब्न जुरैज, और यही आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कौल है, और इमाम तबरी और इमाम अहमद बिन हम्बल और मुसलमानों की एक अजीम जमात ने इसी बात को नकल किया है। और यही मुताखिरीन में से आम फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन का और मुफस्सिरीन का कौल है। ये कौल किसने नकल किया? काज़ी इयाद ने। मुहक्किकीन में से बाज़ मुहक्किकीन ने उस कौल को रद्द करते हुए, जिसमें बाज़ ने कहा कि इसरा 2 मरतबा पेश आया था, उन्होंने कहा कि दुरुस्त बात यह है, जिस पर सारे आइम्मा हदीस का इत्तिफाक है, कि इसरा एक बार पेश आया है, मक्का में पेश आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने के बाद पेश आया है। ताज्जुब है उन लोगों पर जो ये समझते हैं कि इसरा एक से ज़ायद मरतबा पेश आया। उनके लिए क्यों कर जायज़ हुआ कि वो इस बात को कहें या इसका गुमान करें। और हर मरतबा में नमाज 50 फ़र्ज़ की गई। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान आते और जाते रहे, यहाँ तक कि 50 से घटकर नमाज 5 रह गई। फिर अल्लाह ने कहा कि मैंने अपने फरीज़े को नाफिज कर दिया और अपने बंदों से तखफीफ कर दी। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने 50 उसको लौटा दिया, फिर उसमें से 10-10 घटाया। तो ये वाक़या एक से ज़ायद मरतबा जिन लोगों ने कहा, उसको न अक़्ल कबूल करती है और न दलीलें कबूल करती है। सच्ची बात यह है कि इसरा का वाक़या सिर्फ़ एक बार पेश आया है, और वो हालत बेदारी में पेश आया है, आपके जिस्म और रूह के साथ पेश आया है। ये मामला हो गया इसरा का। अब आइए देखते हैं मेराज किसे कहते हैं और उसकी हकीकत क्या है। मेराज की जो हदीस है वो इसरा के हदीस के साथ ही ज़िक्र की गई है नुसूस के अंदर और अहले इल्म के कलाम में, इसलिए उसका तज़किरा भी इसरा के साथ करना फ़ायदे से खाली न होगा। मेराज ये अरबी ज़ुबान का सीगा है जो मिफ़आल के वज़न पर है, उरूज से मुश्तक़ है, यानी वो आला जिसके ज़रिए चढ़ा जाता है। गोया मेराज उस आले का नाम है, उस जीने का नाम है, उस सीढ़ी का नाम है जिसके ज़रिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दिस से आसमान की दूरी तय फरमाई, जिसके ज़रिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से आसमान की तरफ बुलंद किया गया, जिस पर चढ़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान तक पहुँचे। तो मेराज ये मिफ़आल के वज़न पर है और ये आला है उरूज का, चढ़ने का आला, चढ़ने का जीना, चढ़ने की सीढ़ी। लेकिन उस सीढ़ी की कैफियत क्या है? क्या जिस तरीके से एक आम सीढ़ी होती है जिससे इंसान कदम दर कदम आगे बढ़ता जाता है, कदम ब कदम, और बुलंदी की तरफ जाता है, इतनी ही इसी मिक़दार की सीढ़ियाँ थी वो, या वो किसी ख़ास किस्म की सीढ़ियाँ थीं जो आसमान पर चढ़ने के लिए रब्बुल आलमीन ने ख़ास तौर पर बनाई और भेजी थी। ये हम तफसील नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि मेराज ये जीना है और उस जीने के ज़रिए से
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان پر لے جایا گیا۔ گویا اسرا رات کو چلنے کو کہا جاتا ہے، اور وہ چلنا کیسے ہوا کہ براق پر جبریل امین کی معیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ یہ ہے اسرا، رات کو سوار ہو کر جبریل امین کی معیت میں براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے بیت المقدس تک آنا۔ اب وہاں سے معراج کا قصہ شروع ہوتا ہے، یعنی وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کا سفر کیا، اور وہ آسمان کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج نامی زینے کے ذریعے سے فرمایا۔ اب وہ زینہ، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیلات ہمیں نہیں معلوم، لیکن معراج جب بولا جاتا ہے شریعت مطہرہ میں تو اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل امین کے ساتھ بیت المقدس سے آسمان دنیا کی طرف چڑھنا مراد ہوتا ہے۔ پھر آسمان دنیا سے باقی آسمانوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چڑھنے کا جو عمل جاری رہا وہ سب معراج ہی کے ذریعے سے تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان تک پہنچے اور انبیاء کرام کی وہاں پر رؤیت ہوئی۔ آسمانوں میں ان کے اپنے اپنے درجات کے اعتبار سے، ان کے اپنے اپنے مقامات کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سلام کیا، ان کو انبیاء کرام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، اور ان تمام انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کے کلمات کہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چڑھنے کا سلسلہ جاری رہا تا آ کے آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، اور وہاں پر آپ نے جبریل کو ان کی اپنی اصلی شکل میں دیکھا، جس شکل میں اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو پیدا فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آپ پر 5 صلوات فرض کی رات اور دن میں، اور اللہ رب العالمین نے شرف ہم کلامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے پھر زمین کی طرف اترے۔ تو یہ معراج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی یہ اسرا والی رات ہی میں ہوئی تھی۔ تو اسرا بیت المقدس تک کا سفر، اور پھر اسرا بیت المقدس سے آسمان اور 7ویں آسمان اور سدرۃ المنتہا تک جانے اور پھر وہاں سے اترنے کا سفر وہ معراج کے ذریعے سے ہوا۔ کتاب و سنت میں معراج پر دلیلیں موجود ہیں۔ قرآن کے اندر بعض ان نشانیوں کا تذکرہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات دکھلائی گئی تھی، جو بعض نشانیاں، ان کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 12 سے 18 میں رب العالمین فرماتا ہے أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ ان آیات کریمات میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے ان معزز چیزوں کو جن کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم فرمائی گئی معراج کی شب، جیسے جبریل امین کو دیکھنا سدرۃ المنتہا کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سدرۃ المنتہا کو دیکھنا۔ درا حالے کی اسے ڈھانپ رکھا تھا ان عظیم چیزوں نے جنہوں نے ڈھانک رکھا تھا اللہ رب العالمین کے حکم سے۔
ابن عباس اور مسروق، ابن عباس رضی اللہ عنہما و ارضاہما اور مسروق رحمہ اللہ نے فغشاها ما غشا کی تفسیر میں کہا کہ اسے ڈھانپ رکھا تھا سونے کے پتنگوں نے. غشیہا فراش من ذہب، سونے کی سنہری تتلیوں نے، پتنگوں نے اسے ڈھانپ رکھا تھا سدرۃ المنتہا کے، یعنی اس بیر کے عظیم درخت کو. یہ معاملہ قرآن کریم کے حوالے سے ہوا معراج کے تعلق سے. اب احادیث شریفہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو معراج کی خبر تفصیل کے ساتھ ایک سے زائد حدیث کے اندر، یعنی متعدد حدیثوں میں اس قصے کی تفصیل وارد ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت اسراء کے سیاق میں گزری، اسی میں معراج کا قصہ بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اسراء کے تعلق سے تفصیل آپ نے دیکھ لی. اس کے بعد اسی میں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں آسمان کی طرف چڑھایا گیا. عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ، عُرِجَ بِنَا یعنی معراج کے ذریعے چڑھایا گیا بیت المقدس سے آسمان کی طرف. وہاں پہنچ کر جبریل امین نے دروازہ کھلوایا. پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں. کہا ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہا گیا کیا ان کو بلوایا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا گیا تو پہلے ہی آسمان پر، یعنی آسمان دنیا پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی. آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، آپ کے لیے خیر کی دعا کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیہ آسمانوں پر چڑھایا گیا یکے بعد دیگرے، اور ان سبھی آسمانوں پر الگ الگ انبیاء کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات رہی. پھر فرمایا آپ نے کہ ثم ذهب بی الی سدرۃ المنتہا، پھر جبریل امین مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے. تو سدرۃ المنتہا وہ بیری کا عظیم درخت کیسا تھا؟ کہا کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے، اتنے عظیم، اور اس کے پھل قلال کی طرح تھے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر جب اس درخت کو ڈھانپ لیا اللہ کے حکم سے، جس چیز نے اسے ڈھانپ لیا تو پھر وہ بدل گیا، یعنی اس کی رنگت اوپر سے بدل گئی. پوری کی پورے درخت کو ڈھانپ لیا جیسا کہ گزرا سونے کی تتلیوں نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ڈھانپ لیا اس کے بعد اس درخت کی خوبصورتی کا اور اس کے حسن و جمال کا کیا عالم تھا، وہ کوئی مخلوق اسے بیان کر سکنے سے قاصر اور عاجز ہے. پھر اللہ رب العالمین نے میری جانب ان تمام باتوں کی وحی کی جس کی وحی کی. پھر میرے اوپر 50 صلوات فرض کی گئیں دن اور رات میں. پھر میں اترا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا 50 نمازیں. انہوں نے کہا اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے اور اللہ سے مطالبہ کیجئے کہ کچھ تخفیف فرما دے، اس لیے کہ آپ کی امت یہ 50 صلوات کو برداشت نہیں کر سکتی. میں نے بنو اسرائیل کو اچھی طریقے سے آزمایا ہے اور انہیں خوب جانچا اور پرکھا ہے. تو میں اپنے رب کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو میں لوٹ کر پھر اپنے رب کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اے میرے رب، میری امت پر ذرا سا ہلکا کر دیجیے، حکم کے اندر تخفیف کر دیجیے. اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں کم کر دی. پھر میں پہنچا لوٹتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور میں نے انہیں بتلایا کہ اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں کم فرما دی ہیں.
موسیٰ अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि आपकी उम्मत 45 नमाजें भी नहीं अदा कर सकती, आप जाइए अपने रब के पास और कहिए कि मज़ीद तख़फ़ीफ़ फरमा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो मैं लगातार अपने रब तबारक व तआला और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान यूं ही चक्कर मारता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए मोहम्मद अब ये 5 नमाजें रात और दिन में बची रह गई हैं और हर एक नमाज 10 के बराबर है सवाब में। तो इस तरीके से 5 अदा करेगी आपकी उम्मत और 50 का सवाब पाएगी। हदीस और लंबी है लेकिन यहीं पर उसको यहाँ पर रुक जाते हैं। इमाम मुस्लिम ने इसकी तखरीज की है। इसी तरीके से मेराज का किस्सा इन्हीं मिलते जुलते अल्फाज के साथ मालिक इब्न सअसा, अबू ज़र और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम व अर्दाहुम अजमईन से सहीहैन में यानी बुखारी और मुस्लिम और बुखारी और मुस्लिम के अलावा हदीस की दूसरी किताबों में तफसील के साथ जिक्र किया गया है। इसरा और मेराज अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों में से अजीम तरीन निशानी या अजीम तरीन निशानियों में से है, जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ व इकराम फरमाया। तो एक मुसलमान पर वाजिब है कि इसरा और मेराज के क़िस्से के सही होने का एतक़ाद रखे और इस बात का एतक़ाद रखे कि ये दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम मनक़बत है, जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को ख़ास कर लिया रसूलों के दरमियान से। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की है कि एतक़ाद तो रखना ज़रूरी है, ये मानना ज़रूरी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ये क़िस्सा पेश आया ये क़िस्सा सही है और अल्लाह के रसूलों में से नबियों में से किसी को ये एजाज़ नहीं बख्शा गया। लेकिन अगर इससे आगे बढ़कर इस किस्से को यादगार के तौर पर, त्यौहार के तौर पर या शुक्रिये के तौर पर दिन मुतय्यन करके और मनाने का एहतमाम किया जाए तो क्या ये दुरुस्त है? इसलिए कि मुसलमानों के एक बड़े तबके के अंदर इसरा और मेराज के किस्से पर की मुनासबत से बड़े बड़े जलसे जुलूस का एहतमाम किया जाता है। उसके लिए ख़ास नमाजें ईजाद कर ली गई हैं और अवामुन्नास, मुसलमानों में से अवामुन्नास इन इबादतों को, इबादत यानी इन नमाज़ों को और इन जलसों और जुलूस को इबादत समझकर अंजाम देते हैं। इसकी कोई हकीकत है क्या शरीयत के अंदर? सच्ची बात यह है कि ये सारी की सारी चीज़ें इंतहाई कबीह बिदआत के कबील से हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरा और मेराज के क़िस्से की तायीन के साथ इसका कोई जश्न नहीं मनाया, इस पर कोई जलसा जुलूस नहीं किया, इस पर कोई शुक्राने के तौर पर बक़िया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जितने सालों तक रहे कभी आपने उस दिन को मनाया नहीं। ना आपके सहाबे किराम ने मनाया, ना असलाफ़ एज़ाम ने मनाया और ना अहले इल्म में से, ना ही उलमा में से जिनके अक़वाल का उम्मत एतबार करती है, उनमें से किसी ने इस काम को किया। और जब किसी ने इस काम को नहीं किया तो फिर ऐसा काम शरीयत का हिस्सा क़यामत तक नहीं हो सकता, ये बिदात है। और इसीलिए उलमाए किराम ने, अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए किराम ने वाज़ेह तौर पर बयान किया
کہ 27 रजब को जो नमाज ख़ास कर ली गई है और जो दीगर रसूम व रिवाज ख़ास कर लिए गए हैं, ये दीन के अंदर बिदात के कबील से हैं, जो नई चीज़ दीन में ईजाद कर ली गई है और ये गैर मशरू अमल है तमाम अइम्मा इस्लाम के इत्तेफाक से। और इस जैसी चीज़ दीन में अगर कोई ईजाद करता है तो सिवाय जाहिल और बिदाती के और उसे कुछ कहा नहीं जाएगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है कि मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द। और ये रिवायत इमाम मुस्लिम ने नकल की है, 2697 नंबर की हदीस है ये, कि जिसने हमारे दीन में, हमारी शरीयत में किसी नई चीज़ को इबादत समझ कर ईजाद किया जो उसमें से नहीं है, जो उसका हिस्सा नहीं है, फहुवा रद्दुन आई मरदूदुन अलैहि, तो वो उसके मुंह पर मार दी जाएगी, वो उसी पर लौटा दी जाएगी। लिहाजा ये समझ में आया कि इसरा और मेराज का वाक़या हक़ है और उस पर एतक़ाद, उसका एतक़ाद रखना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अजीम तकरीम हुई इस वाक़े से, इसको मानना ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। लेकिन इस क़िस्से के हवाले से जश्न का, जलसे जुलूस का, किसी ख़ास नमाज का, किसी ख़ास प्रोग्राम का, किसी ख़ास सेमिनार का एहतमाम किया जाए, ये दुरुस्त और रवा नहीं है। ये दीन के अंदर जो बड़ी बिदातें हैं उन बिदात के कबील से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तमाम चीज़ों से एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को इससे बचाए रखे। और फिर ये भी बात है कि मेराज के क़िस्से की सही तारीख़ के ताल्लुक़ से किसी एक बात पर उलमाए किराम का इत्तिफाक नहीं है कि मेराज किस साल पेश आई, किस महीने में पेश आई, किस तारीख़ को पेश आई। इस चीज़ को हतमी तौर पर कहा ही नहीं जा सकता, उसके बारे में कोई एक हतमी कौल नहीं है जिस पर उलमाए किराम का इत्तिफाक हो। अगर ऐसी कोई चीज़ होती दीन के अंदर कि जिसको मनाने का एहतमाम करवाना मकसूद होता तो उसमें इस कदर इख्तिलाफ कभी न रखा जाता। आप देख लें, ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, जो दो जश्न के दिन शरीयत मुतहरा के अंदर हैं, उसके अंदर कभी कोई इस तरह का इख्तिलाफ आप नहीं पाएंगे, इसलिए कि वो दिन मुतय्यन है। लेकिन इसरा और मेराज का किस्सा किस साल, किस महीने, किस तारीख़ को पेश आया, ये हतमी नहीं है, इस पर इत्तेफाक़ी राय उलमाए किराम का नहीं है। और ढेर सारे अक़वाल हैं, ये भी नहीं कि एक दो कौल का मामला हो। लिहाजा और जब दिन की तायीन नहीं, महीने की तायीन नहीं, साल की सही जो है इत्तेफाकी तायीन नहीं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में इस क़िस्से के लिए किसी दिन को मुतय्यन करना कैसे रवा और जायज़ और दुरुस्त हो सकता है। इसके बाद अगला दर्स है जो अंबियाए किराम की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से है। रसूलों पर ईमान ही का एक गोशा अंबियाए किराम के इंतकाल के बाद कब्रों में उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़, उनकी वफ़ात पा जाने के बाद, उनकी वफ़ात हो चुकने के बाद कब्र के अंदर उनकी ज़िंदगी का क्या मामला है, ये एक मारकतुल आरा मसला बना दिया गया है मुताख़िर दौर में, बाद के ज़माने में। इस पर इंशाअल्लाह कुछ तफसील आपके सामने रखी जाएगी। लेकिन आज वक्त काफ़ी हो चुका है और आज का दर्स इसी पर ख़त्म किया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दुरूस को हमारे लिए मुफीद बनाए और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो अक़ीदा साबित है, जितनी तफसीलात साबित हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें हम सबको मानने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए और उन्हीं के मुताबिक हमें उन्हीं पर इक्तिफ़ा करते हुए और उन्हीं पर बस करते हुए और उन्हीं को अपना अक़ीदा बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हादा व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ग्रुप पर लिंक मौजूद है, वहाँ पर अपनी हाज़िरी दर्ज कर दें आप लोग।
جو لوگ پرماننٹ ہمارے ساتھ شریک ہیں تاکہ ان کی حاضری لگ جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.